سارا مجمع مل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ جن سے اہل نجد تھرائیں وہ ہے احمد رضا، سب کی بولیے سبحان اللہ۔ جن سے اہل نجد تھرائیں وہ ہے احمد رضا، تو فخر ہند کا ہلائے وہ ہے احمد رضا۔ اور فخریہ لہجے میں کاندھے پہ اٹھا کے پال کی اور شان سید کی جو بتائے وہ ہے احمد رضا۔ اور اپنے اپنے پیر پہ ناز کرتا ہر مرید، پیر جس پہ ناز کرے وہ ہے احمد رضا۔ وہ امام احمد رضا کہ میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے۔ یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا عمدہ انداز میں لاجواب لہو لہجے میں عشق و مستی کا جام پلا رہے تھے آل رسول سید کیفی میاں۔ اور اسی درمیان آپ نے دیکھا اہل سنت والجماعت کی شان، تاج الشریعہ کا شیر نر ہے، محدث کبیر کا اعتماد، ہاں وہ آئے جس نے ڈپلوما کا جنازہ نکال دیا، وہ آئے جن کا نام سنتے ہیں سنت کلیت بھاگ جاتی ہے، جس سے میری مراد بازوئے قائد ملت مناظر اہل سنت مفتی اختر حسین قادری کی آمد ہوئی، بن کے مفتی اعظم کی عطا آئے ہیں، لیکن تاج الشریعہ کی دعا آئے ہیں۔ یہ بزرگوں کا کرم نہیں تو کیا ہے، آج کی محفل میں اختر حسین علی بھی آئے ہیں، اور تیری انا کا سارا حساب و کتاب کر دے گا، ہر طرح سے تجھے لاجواب کر دے گا، اور کسی بھی شکل میں آ جاؤ اے سنے کلیہ رضا کا شیر تجھے لاجواب کر دے گا۔ اور جہاں میں فن کتابت کی تاجداری ہے، حضور تاج الشریعہ کا فیضان جاری ہے۔ میں جانتا ہوں مخالفوں کا ہجوم ہے مگر رضا کا شیر اکیلا ہی سب پہ بھاری ہے۔ اب آئیے، جس طرح گلوں کی نمائش ہوتی ہے گلدانوں کو آواز دی جاتی ہے، جس طرح پتھروں کی نمائش ہوتی ہے سنگ مرمر کو آواز دی جاتی ہے، جس طرح خوشبو کی نمائش ہوتی ہے تو عطر فروش کو آواز دی جاتی ہے، اور اس طرح مجمع ہو ایسے خطیب کو آواز دی جاتی ہے جسے تاج الحکام مفتی اختر حسین علی نے کہتی ہے۔ اب آئیے استقبال کر لیں، نعرے تکبیر، پیچھے والے بھی تھوڑا آواز نکال لیں، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ حیدری۔ اس شعر کے ساتھ کہ پہلے روحانیت کا پروٹین دیجیے، پہلے روحانیت کا پروٹین دیجیے، پھر عشق مصطفیٰ کا وٹامن دیجیے، جسے پکڑا ہے توہین مصطفیٰ کا مرض اسے رضا کے نام کا ویکسین دیجیے، اور جسے پکڑا ہو سنے کلیت کا مرض اسے اختر رضا کے نام کا ویکسین دیجیے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے ادباً عرض ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئے، اگر وہ اردو سمجھتے ہیں تو۔ الحمد لله الذي ابدع الافلاك والامطين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
منبر پاک پر جلوہ فرما سادات کرام، علماء عظام، ائمہ فقہ، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باس کم گیس کو کم کر دو۔ یہ عظیم الشان اجلاس اور بارہ بس جسے آپ سب نے عقیدت و محبت کے ساتھ منعقد کیا ہے، تحفظ عقائد بموقع عرس امام احمد رضا اس کا انعقاد کر کے آپ نے ایک عظیم پیغام دینے کی جد و جہد کی ہے۔ رب تعالی اپنے محبوبوں کے طفیل آپ سب کی اس محنت کو اور شرکت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ کی تحیت و ثنا اور منقبت کے اشعار سن کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا۔ ایمان میں تازگی آئی، دل خوش ہوا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، جگر آسودہ ہوا۔ اللہ آپ سب کے ایمان میں اور پختگی عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے بیچ ہوں۔ مسلسل سفر اور دیگر مصروفیات میں اللہ کے کرم سے ایک ذمہ داری یہ بھی مجھے ملی ہوئی ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان قرآن و حدیث کا صحیح پیغام پہنچا کر ان کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا سامان فراہم کیا جائے۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسٹیج فضل و کمال کے گلدستے سے سجا ہوا ہے، علماء کا جمع غفیر ہے، اور آپ نے ایک خوبصورت اور پاکیزہ ماحول بنا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ ہوں، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سروری کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدی الجود والکرم وآل الکرام اجمعین۔ اللہ کی سستا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا،
ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. حضرات، اس وقت دنیا بھر کے حالات مجھ سے زیادہ آپ کی نظروں میں ہیں. میں نے حالات کو دیکھ کر جو نتیجہ نکالا ہے اس کی روشنی میں کچھ دیر عرض کرنے کی جسارت کروں گا. اس وقت امت مسلمہ کے سامنے جو مسائل ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ جس چیز کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ چیز کیا ہے؟ اگر آپ دانشورانہ قوم و ملت سے اس مسئلے پر گفتگو کریں تو عام طور سے مسلمانوں کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے تعلیم کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ، غربت کا مسئلہ یہ ایک مسئلہ ہے. آپ بھی اخبار کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ یہ باتیں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. ہماری اور آپ کی بولی میں مسئلہ کہتے کس کو ہیں اسے آپ پہلے سماعت فرما لیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عام بول چال میں جب کہا جاتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے مگر رکاوٹیں آ جا رہی ہیں، اسے کر نہیں پا رہا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر مجھے مائک سے تقریر کرنی ہے اور یہ مائک بار بار خراب ہو جائے تو آپ بھی کہیں گے مائک کا ایک بولیے آگے. یہی میں سننا چاہ رہا ہوں. شاندار لائٹ کا انتظام ہے، اگر لائٹ بار بار آئے اور جائے تو آپ کہیں گے لائٹ کا. آپ بولنا چاہتے ہیں مائک پر لیکن رکاوٹ پیدا ہو جا رہی ہے، تب آپ نے کہا یہ ایک. لیکن اگر یہ کام کر رہا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ مائک ایک اس وقت مسئلہ ہے؟ نہیں. آپ دیانتداری سے بتائیے گا. اگر مسئلہ کا یہی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کے لیے تعلیم کا کیا مسئلہ ہے؟ تعلیم کا مسئلہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ میرے علم کے مطابق پورے ہندوستان میں کوئی ایسا اسکول، کوئی ایسا کالج، کوئی ایسی یونیورسٹی، کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ، کوئی ایسا مکتب، کوئی دارالعلوم، کوئی جامعہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ پڑھنا چاہیں اور آپ کے اوپر پابندی ہو. آپ کی معلومات میں ہندوستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے کہ آپ پڑھنا چاہیں مگر آپ کو روک دیا جائے؟
یا آپ کے شہر میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے صوبے میں ہزاروں اسکول اور کالج جو کھلے ہوئے ہیں، کیا آپ کو وہاں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے؟ میں بات ہندوستانی جمہوریت کے مطابق قانون کی کر رہا ہوں۔ لوگ کرتے کیا ہیں، میں بات اس کی نہیں کر رہا۔ قانونی طور پر آپ ہندوستان کے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے سامنے تعلیم کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو مسئلہ اس وقت ہوتا جب آپ پڑھنا چاہتے مگر کوئی روکتا۔ آپ خود نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ اس کو مسلمانوں کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر پڑھنے سے روکا گیا ہوتا تو یہ علماء آپ کے سامنے دکھتے۔ اگر پڑھنے سے روکا گیا ہوتا تو ہزاروں مسلم ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، پروفیسر آپ کو نظر آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے تعلیم کا کوئی مسئلہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اسی زبان استعمال کر رہا ہوں نا، آپ اس کو سمجھیں۔ یہ آپ کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے تعلیم کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہزاروں مدرسے مفت میں تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نے راہ دکھلایا کسے؟ رہ ہوئے منزل ہی نے۔ آج بھی جلوہ طور اپنی روشنی بکھیرنے کے لیے تیار ہے۔ موسیٰ جیسی نظر لے کر کوئی آئے تو صحیح۔ ہزاروں ادارے اپنے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہیں، محنت و مشقت کر کے، عمارتیں کھڑی کر کے آپ کے انتظار میں ہیں، تو آپ کے لیے تعلیم کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے یہ بات ذہن سے نکالیے کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں تو تعلیم کا مسئلہ ختم ہے۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کرنا چاہے مگر کوئی روک دے، تو جب آپ کو کوئی روک نہیں رہا تو یہ تعلیم کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ خود روک ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، اسے قوم کا اور امت کا مسئلہ مت کہیے۔ رہی غربت، رہی روزگار کی بات، پیسے کی بات، دولت کی بات، آپ مجھے بتائیے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے آپ کے سامنے؟ اگر آپ مزدوری کرنا چاہیں تو کیا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے روکا گیا ہے؟ اگر آپ بزنس کرنا چاہیں، دکان رکھ کر آپ اپنا گزر بسر کرنا چاہیں تو کیا آپ کو روک دیا گیا ہے؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی کے لیے بائیکاٹ کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا جا سکتا، مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ قانون ہندوستان کا یہ ہے کہ بزنس میں آپ کسی کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ کے لیے پیسے کا کیا مسئلہ ہے؟ کس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے کہ کمائیے مت؟ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو قوت دی ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ آپ بزنس کریں، آپ مزدوری کریں، آپ پیسے کمائیں، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے گئے ہیں، تو آپ کے لیے مال کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے تعلیم کا اور ان کی غربت کا مسئلہ ہے، یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ میں نے اس علاقے کا جائزہ تو نہیں لیا ہے، مگر میں اپنے یو پی میں خاص کر گونڈا بستی کی بات اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ نہ جانے کتنے ایسے ارب پتی ہیں کہ جنہوں نے 20-20 کمروں پر مشتمل مکان بنا کر کھیت میں چھوڑ رکھا ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا ہے۔ سال بھر کبوتر یا کتے اور بلی رہتے ہیں، 2 سال میں ایک بار وہ اپنے گھر جاتے ہیں 2-4 روز کے لیے، اور اتنا اتنا بڑا مکان بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔
अगर पैसे ना होते तो इतने बड़े बड़े मकानात कैसे बनाए गए होते? अगर उनके पास दौलत न होती तो ये पैसा लगा करके इतना बड़ा मकान क्यों छोड़ दिया गया होता? इसलिए आप अपने जहन से ये बात निकालिए कि आपके लिए गुर्बत का मसला है। आप रेलवे स्टेशन के अगल बगल में देखिए कौन से लोग हैं जो तनी हुई पॉलीथीन के नीचे रहते हैं। आप नजर उठा करके देखिए और उससे इबरत हासिल कीजिए। इसलिए न आपके सामने तालीम का मसला है, न आपके सामने दौलत का और गुर्बत का मसला है। अब आगे आइए, अगर आपने अपने ईमान की पुख्तगी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए तो बताइए लोग आपको रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं? अगर आप कहीं खुल करके नमाज पढ़ना चाहें तो रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा? आप अगर या रसूल अल्लाह कहें तो एक तरफ से इसको रोक कर शिर्क का फतवा लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा? अगर आप अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करें और नबी को अपनी मुसीबत में पुकारें तो आपको मुशरिक कह करके इस काम से रोकने की कोशिश की जा रही है कि नहीं की जा रही है? तो बताइए आपके सामने क्या मसला आया? आपके सामने मसला क्या आया? आप कान खोल करके सुनिए। इस वक्त ना तो आपके सामने तालीम का मसला है, न इस वक्त आपके सामने दौलत और गुर्बत और अमीरी का मसला है। इस वक्त हमारे नौजवानों के सामने जो सबसे अहम मसला है वो ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, इनकी तहजीब की हिफाजत का मसला है, इनके कल्चर की हिफाजत का मसला है, इनके सच्चे अकीदे की हिफाजत का मसला है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। चोर ने अपना चोला बदल लिया है, चोर ने अपना तरीका बदल लिया है, चोर ने अपना सिस्टम अलग कर लिया है। पहले चोर आबादियों में आता था तो कटारी लेकर, कट्टा और बंदूक लेकर, जाहिरी असलहा लेकर, लाठी और डंडा लेकर, लेकिन अब चोर जुब्बे में आता है, अब चोर साफे में आता है, अब चोर कुरान लेके आता है, अब चोर हदीस लेकर आता है, अब चोर तस्बीह लेकर आता है, अब चोर आपके सामने हदीस की किताबें रख करके और आपको अपनी तरफ बुलाकर आपके ईमान की चोरी की फिक्र में लगा रहता है। अब चोर अपना चोला बदल चुका है, इसीलिए न जाने कितने लोगों का ईमान ज़ाय हो चुका है। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम अलैहि तहियतु व सना ने सच फरमाया, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। आदमी शाम को मोमिन होगा मगर सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। आदमी सुबह को ईमान वाला होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। आज हम देखते हैं हमारा वो नौजवान, हमारा वो मुआशरा कि जो सुन्नी सहील अकीदा था, रात में जब वो बिस्तर पर गया तो किसी इर्जा और किसी मिर्जा की उसने तकरीर सुनी, किसी की उसने बातें सुनी और उसने रात में सुनते सुनते अपने आप को नींद में ले जा करके ख्वाब गफलत में डाल दिया। अब उसके दिल में बात बैठ गई, ये सही कह रहा है, ये इंजीनियर है ना, ये फला है ना, ये मौलाना से ज्यादा काबिल है, ये यूट्यूब पर आ रहे हैं, ये चैनल पर आ रहे हैं। हमारे इमाम साहब को तो मोहल्ले के लोग नहीं जानते, वो जो तकरीर करते हैं जुमा की उसमें उतनी दलील नहीं होती है, ये बहुत अच्छी दलील दे रहा है, बहुत सलीके से बात कर रहा है। तो रात में सोता है सुन्नी होकर मगर सुबह उठता है बदअकीदा होकर, और फिर सुबह को अपने इमाम के पास जाकर कहता है, मौलाना रात हमने सुनी है ये बात, ये फला ने बहुत ही दलीलों से बताया है हमको कि हुजूर को गैब नहीं मालूम था, उसने दलीलों से हमको समझाया है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, उसने बहुत सारी दलीलें दी हैं कि अबू बकर ईमान वाले नहीं थे, उसने बहुत सारी दलीलें दी हैं कि सहाबा मुनाफिक हो चुके थे,
तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचान न आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो अटैक किया जा रहा है, आप अगर निगाह इबरत से देखें तो आपको कहना पड़ेगा सबका निशाना अकीदे अहले सुन्नत है। सबके निशाने पर उम्मत मुस्लिमा के वो नौजवान हैं जो सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात ही वो प्यारी जमात है जिसने एतदाल के साथ उम्मत मुस्लिमा को जिंदगी गुजारने का दर्स दिया है। इसके यहाँ न इफरात है न तफरीत है। अगर ये जमात सहाबा का एहतराम सिखाने वाला गरोह है तो अहले बैत की मोहब्बत बताने वाला भी यही गरोह है। अगर ये अइमे मुज्तहिदीन की अजमत आपको बताता है तो उलमाए रब्बानीन के दामन से वाबस्ता रहने का सलीका भी यही जमात आपको देती है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आप नजर उठा करके देखें, कलमा पढ़ने वालों की एक जमात नबी का कलमा पढ़ती है मगर खुदा की शान में गुस्ताखी करती है। क्या आपने उलमा से यह नहीं सुना कि इसी हिंदुस्तान में एक शख्स ने अपनी किताब में लिख करके छापा कि खुदा झूठ बोल सकता है। अगर आपका इमाम झूठ बोले तो आप कहेंगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये तो झूठ बोलते हैं। और खुदा के बारे में अगर कोई अकीदा रखे कि खुदा झूठ बोल सकता है, बताइए उसे हमारा दिल कैसे मुसलमान कहने के लिए तैयार हो सकता है। ऐसा गरोह इसी हिंदुस्तान में है कि जो नबी का कलमा पढ़ता है मगर उसके बावजूद नबी को आखिरी नबी नहीं मानता है, बल्कि वो अपनी किताब में खुल्लम खुल्ला लिखता है कि हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग भी इसी हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। क्या आपका दिल इस बात को गवारा करेगा कि जो रसूल पाक की शान में ऐसे जुमले कहे हम उसे मुसलमान कहें? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये इरशाद फरमाए, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए अल्लाह का हर नबी जिंदा है। रसूल पाक तो ये फरमाए कि नबी जिंदा है और एक जमात कहे कि नबी मुर्दा है। अब आप मुझे बताइए कि आप नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं या ऐसे मौलवियों का कलमा पढ़ने वाले हैं? ऐ इमाम अहमद रजा, तेरी तुरबत पर रहमतें हों, तेरी कब्र पर रहमतों नूर की बारिश हो कि जब ऐसे लोग हमारा रिश्ता नबी से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, रब ने तुझे बरेली में पैदा किया और तूने ललकारा और कहा सुन लो, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। अभी अहमद रजा जैसा रब ने हिंदुस्तान में एक आलिम रब्बानी को पैदा कर दिया है जो हर मुखालिफ की आंख में आंखें डाल करके बात करने का हुनर जानता है। अगर तुम कहोगे कि नबी मुर्दा है तो वह तुम्हें चैलेंज करेगा और कहेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मुझे याद आया, मुझे याद आया इस बात पर एक वाक़या याद आ गया। मैं मुतअद्दिद बार अल्लाह के करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत से मदीने मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत कर चुका हूँ। एक बार मैं गया, मेरी आदत थोड़ी तजस्सुस की है, तहकीक की है, मिजाज ऐसा है कि जाना जाए, हकीकत को पहचाना जाए, फिर कोई गुफ्तगू की जाए। इत्तेफाक से मैं मस्जिद नबवी शरीफ में असर की नमाज पढ़कर बैठा हुआ था। गुंबद खज़रा के नूरानी जलों को अपनी आंखों में बचा रहा था। अंदर मस्जिद नबवी में मैं हाजिर था, असर की नमाज पढ़ चुका था। जलवे मुबारक बिल्कुल सामने, जालिए पाक के सामने मैं बैठा था। रियाजुल जन्नह से करीब में इत्तेफाक से एक नौजवान आया, उसने मेरे बगल में खड़े होकर के नमाज पढ़नी चाहिए। उसके हाथ में एक किताब थी, बात मेरी समझ रहे हैं ना आप लोग? उसके हाथ में एक किताब थी, उसने ऐसी किताब फेंकी और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने उस किताब को उठा लिया।
آج تک میرے ذہن میں اس کتاب کا نام ہے، یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، اس کتاب کے اوپر نام کے طور پر لکھا ہوا تھا البدایہ والنہایہ۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ کس موضوع کی کتاب ہے۔ میں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لے لیا، ادھر ادھر سے پڑھنے لگا اور اس انتظار میں تھا کہ یہ نماز ختم کرے تو میں اس نوجوان سے کچھ بات کروں۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو میں نے اس کی طرف توجہ کی اور میں نے سلام کیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا هل استطيع ان اتکلمک، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا ماذا تشتغل، آپ کرتے کیا ہو، آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کا ورک کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اتعلم فی الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ فی ای صف تقرأ، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فی الصف السابع، میں 7ویں درجے کا طالب علم ہوں۔ وہ عالمانہ کورس پڑھ رہا تھا اور یونیورسٹی کے اعتبار سے اس نے اپنی جماعت کا جو نام لیا وہ 7ویں کلاس اور جماعت کا نام لیا۔ میں نے اس سے پوچھا این تسکن، آپ رہتے کہاں ہو؟ اس کے چہرے مہرے سے میں سمجھ چکا تھا کہ یہ افریقی ہے، پھر بھی میں نے پوچھا این تسکن، آپ رہنے والے کہاں کے ہو؟ اس نے کہا انا من سوڈان، میں سوڈان کا ہوں۔ جب اتنی باتیں اس نے کی تو میں نے سوچا کہ ذرا اس سے پوچھوں، اس سے میں معلوم کروں کہ یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بہترین سوال اپنے ذہن سے اختراع کر کے اس کے سامنے رکھا۔ میں نے فوراً اس سے سوال کیا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ رسول پاک کے روضے پر جا رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کو سنتے ہیں؟ یہ میں نے اسے سوال کیا۔ اس نے دیکھا نہ آؤ نہ دیکھا تاؤ، فوراً اس نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انک میت و انہم میتون، یہ قرآن کی آیت ہے، حفاظ بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے۔ اس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس نے کہا اللہ کا ارشاد ہے انک میت، اے نبی آپ پر موت طاری ہوگی، وانکم میتون وانہم میتون، اور دوسرے لوگ بھی مریں گے۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس نے اپنے انداز میں کہا فکلہم سوا سوا، کلہم سوا سوا، سب برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہا کوئی نہیں سنتا ہے، نہ عام لوگ سنتے ہیں نہ نبی سنتے ہیں۔ اس کا جب یہ عقیدہ مجھے معلوم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا اس کو بریلی کا کوئی انجیکشن دے دیا جائے تاکہ اس کی سمجھ میں بات آ جائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت کی تلاش کرنی چاہیے۔ آج جو لوگ ڈاکٹر اور انجینئر کہلانے کے باوجود اپنے آپ کو وہابی دیوبندی کہتے تو مجھے شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھ کر کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں یا یوں ہی ڈاکٹر بن گئے، اس لیے کہ پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے، نبی کی طرف سے اس کے دل میں بغض نہیں آ سکتا ہے۔ اگر پڑھا لکھا مسلمان ہے تو اسے تو یہ سمجھنا ہی چاہیے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو اب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو اس نے جب یہ جواب دیا میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس سے کہا آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا انک میت، اے نبی آپ پر موت طاری ہوگی، آپ اس سے کہنا چاہتے ہو کہ معاذ اللہ نبی مردہ ہیں، تبھی تو آپ نے کہا کلہم سوا سوا، سب برابر ہیں۔ یہ بات میری اس سے عربی میں ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا هل سمعت اسم الشیخ ابن القیم، کیا آپ نے ابن قیم کا نام سنا ہے؟ یہ میں نے اسے سوال کیا۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے جو بیٹھے ہوئے جانتے ہوں کہ غیر مقلدین چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید کے قائل نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ امام اعظم امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم کی تقلید سے تو انکار کرتے ہیں، مگر در پردہ وہ ابن قیم کی تقلید کرتے ہیں، ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں، قاضی شوکانی کی تقلید کرتے ہیں۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ہم دکھائیں گے کہ تم کس طرح سے تقلید کرتے ہو۔ امام اعظم کو برا کہنے والے ابن تیمیہ کی تقلید میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے ایک نہیں ہزاروں دلائل آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے ابن قیم کا نام اس لیے لیا کہ غیر مقلدیت کے ہاں اور دیابنا وہابیہ کے ہاں یہ نام
बड़ा मोतबर है, मैंने उन्हीं के घर का नाम इसलिए लिया कि आदमी किसी और की ना मानेगा तो अपने घर की तो जरूर मानेगा। आज लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा ने कहा, मैं कहता हूं कोई एक मसला ले आओ और बताओ कि इमाम अहमद रजा ने इसे अपने घर से बयान किया हो। इमाम अहमद रजा ने जो कुछ बयान किया है वो अइमे मुज्तहिदीन के इरशादात किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान किया है। आज तक कोई एक मसला ऐसा कोई बदअकीदा नहीं साबित कर सका कि जिसके बारे में वो ये कह रहा हो कि इमाम अहमद रजा ने ये मसला गलत बयान किया है। आप फतावा रज़विया की 12 जिल्दें और इस वक्त एक एडिशन 22 जिल्दों में और एक एडिशन 32 जिल्दों में आ रहा है। पूरी दुनिया इल्म फज़ल फतावा रज़विया के मसाइल को देख करके हैरान और परेशान है। तहदीस नेमत के तौर पर इसीलिए खुद इमाम अहमद रजा ने फरमाया था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम की समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। सुभान अल्लाह, नारे ये तकबीर। कहना तो आसान है कि ये मौलाना अहमद रजा ने कहा है, लेकिन मैदाने इल्म में आकर के उसका इनकार करना यह बहुत मुश्किल काम है। इमाम अहमद रजा ने जो कुछ फरमाया वो कुरान और सुन्नत और अहादीस तैयबा का निचोड़ है। फतावा रज़विया उनकी किताब खुली हुई है। अगर वक्त रहता तो मैं सुबह तक आपके सामने इमाम अहमद रजा के फजलो कमाल का जलवा दिखा सकता हूँ और एक एक बाप के मसाइल को मैं आपके सामने रख करके बता सकता हूँ कि इमाम अहमद रजा ने 1400 साल रिवायत की हिफाजत किस तरह फरमाई है और उम्मत मुस्लिमा के ईमान के तहफ्फुज का काम ऐसे ही नहीं इस तनदेही से अंजाम दिया है कि दुनिया पुकार उठी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इब्ने कय्यम का नाम लिया। मैंने कहा क्या आपने इब्ने कय्यम का नाम सुना है? क्योंकि वो उनके पेशवा गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम हैं, इसलिए मैंने वो नाम लिया। उसने कहा नाम समिअतु, हाँ मैंने ये नाम सुना है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने उनकी किताब अर्रूह का मुताला किया है? इब्ने कय्यम की किताब है, उसका नाम है अर्रूह। अर्रूह किताब का नाम है। मैंने उस किताब का नाम लिया। उसने कहा अल्लाह, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है। मैंने कहा इब्ने कय्यम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिखा है जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसको इबारत पढ़ करके सुनाई। इब्ने कय्यम अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिखते हैं, क़द सह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। इब्ने कय्यम अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिखते हैं कि सही हदीस से ये साबित है कि सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। ये इब्ने कय्यम गैर मुक़ल्लिदों के पेशवा ने लिखा है। मेरा न बन अपना तो बन, मेरा न बन अपना तो बन, मुझ पर मत एहसान कर, अपने ऊपर तो एहसान कर। अगर तू नबी को मुर्दा कहेगा और इसी के साथ तू दुनिया से जाएगा तो कब्र में जब पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, बता इनके बारे में तू क्या कहता था, इंसाफ से बताना वहां क्या तू कहेगा। हमें तो कोई फिक्र नहीं है, नो टेंशन, हम फ्री हैं, इसलिए कि हम जो यहाँ कहते हैं वही वहां कहेंगे। हम तो यहाँ कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। तो जब हम यहाँ ये कहते हैं तो इंशाअल्लाह कब्र में भी जब हमसे पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था, तो हम वहां भी कहेंगे सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो जब हम यहाँ कहते थे इंशाअल्लाह वहां भी यही कहेंगे। बता तू क्या कहेगा अगर नबी को मुर्दा कह करके लोगों को उनकी बारगाह में सलाम पेश करने से रोकता है, इंसाफ से बता तू वहां क्या कहेगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह में लिखा है, सही हदीसों से साबित है कि सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। फिर खुद ही वो सवाल करते हैं, खुद ही सवाल करते हैं कि अगर वो जिंदा हैं तो नजर क्यों नहीं आते, जिंदा हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। फिर खुद ही उसका जवाब देते हैं। मैंने बहुत पहले एक गुस्ताख रसूल की तकरीर सुनी थी, जिसने अपनी तकरीर में कहा था कि नबी अगर जिंदा हैं तो हमको बताओ कहाँ है, जाकर के हम देख लें। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे, हर शख्स को हर चीज दिखाई नहीं जाती। उस इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिखा है कि अगर नबी जिंदा हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं, हमें नजर क्यों नहीं आते। फिर खुद ही वो जवाब देते हुए लिखते हैं कि जो चीज मौजूद हो उसका दिखना कोई जरूरी नहीं है। फरिश्ते आपके कंधे पर मौजूद हैं मगर दिखते नहीं हैं, जिन्नात मौजूद हैं मगर दिखते नहीं हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में फरिश्ते मौजूद हैं मगर दिखते नहीं हैं। बल्कि आगे वो लिखते हैं कि इन सारी बातों को क्या पेश किया जाए, हवा मौजूद है मगर दिखती नहीं है, खुदा मौजूद है मगर दिखता नहीं है। तो जो चीज मौजूद हो, जिंदा हो, उसका दिखना कोई जरूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर नबी जिंदा है और दिखते नहीं है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो दिखाते हैं अपना जलवा मगर हर एक को नहीं, जिसको वो नजर मिलती है उसे दिखाते हैं। अल्लाह ने वो नजर बहुत सारे अपने महबूबों को दी, उन्हीं महबूबों में इमाम अहमद रजा भी हैं, जिनको रसूल पाक ने अपना जाहिरी दीदार अता फरमाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। मैंने जब इब्न क़य्यिम का नाम लिया और मैंने उससे कहा कि इब्न क़य्यिम ने अपनी इस किताब में लिखा है, अब उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा क्या आप इसको मानते हो, इब्न क़य्यिम ने जो कहा है इसे आप तस्लीम करते हो। अब इनकार कैसे कर सकता था, अब तो बरेली के अहमद रजा की बात नहीं थी, अब तो अपने घर की बात थी। अब वो समझ गया कि गाड़ी ऐसे नहीं खिसकेगी, कुछ न कुछ इधर उधर करना पड़ेगा। अब उसके बाद मैंने जब उससे बार बार पूछा क्या आप इसको तस्लीम करते हैं, इब्न क़य्यिम ने ये लिखा है रूह के अंदर, क्या आप इसको मानते हैं, उसने कहा नाम, हाँ मैं इसको मानता हूं। जो ही उसने कहा मैं इसको मानता हूं, मैंने उससे कहा अखी ली सवाल, मेरा एक सवाल है, आप उसका जवाब दो। उसने कहा माजा, वो क्या सवाल है। मैंने कहा आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माअज़ल्लाह मुर्दा होने के लिए कुरान की आयत सुनाई जिसमें फरमाया गया इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी। आपने इसे साबित करना चाहा कि नबी मुर्दा हैं, और इब्न क़य्यिम ने लिखा सही हदीस से साबित है कि नबी जिंदा हैं। तो आप कुरान से साबित करना चाहते थे कि नबी मुर्दा हैं, और इब्न क़य्यिम ने हदीस सही से साबित किया है कि नबी जिंदा है। तो जो मुर्दा होगा वो जिंदा नहीं, जो जिंदा होगा वो मुर्दा नहीं। आप बताओ कुरान सही है कि हदीस सही है, आप दोनों में से किसको मानते हो। गाड़ी फंस गई, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए तो हम कहते हैं आओ या तो इमाम आजम के दामन में पनाह ले लो या इमाम शाफई के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हदीस समझने का शऊर आ जाएगा, कुरान की आयतों को समझने का शऊर आ जाएगा। खुदा की कसम, जो तकलीद अइम्मा अरबा का दामन छोड़ करके जिंदगी गुजारना चाहे वो आए मेरे सामने, फिर मैं बताऊंगा कि इसने तकलीद के कितने कांटे अपने जिस्म में चुभो रखे हैं और किस तरह से ये तकलीद करता है। बस फर्क ये है कि उम्मते मुस्लिमा इन चारों इमामों की तकलीद करती है और कुछ लोग गले सड़े लोगों की तकलीद करते हैं। ये उनके अपने नसीबे की बात है और ये हमारा नसीबा है। तभी तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया शाफई मालिक अहमद इमाम हनीफ चार बागे इमामत पे लाखों सलाम। इसलिए मैंने उससे जब ये कहा बताओ ये सही है कि ये सही, आप इसे मानते हैं कि इसे मानते हैं। अब बेचारा फंस गया। अगर कहता है कि मैं दोनों को मानता हूं तो अब तो बात आएगी ना। वो उसने साबित करना चाहता कि नबी मुर्दा है और सही हदीस से साबित हो गया कि नबी जिंदा है, तो दोनों
कैसे सही हो सकता है। अब वो बेचारा पशु पेश में पड़ गया, वो गौर करने लगा। हमने कहा बताएं दोनों सही है कि? कहा नहीं दोनों सही। हमने कहा कैसे सही है? अब वो परेशान हो गया। और यकीन जानिए जैसे कोई बच्चा अपने किसी साथी का हाथ पकड़ करके बार बार कोई चीज मांगे और कहे हमें मिठाई दो ना, मिठाई दो ना, मिठाई दो ना, बच्चे करते ना कभी कभी अपने दोस्त से, बिल्कुल इसी तरीके से वो मुझसे कहता बैन लना माना हादिल आया व हादिल हदीस, या शेख बैन लना माना हादिल आया व हादिल हदीस, शेख मुझे आयत का भी मतलब बता दीजिए, मुझे हदीस का भी मतलब बता दीजिए। दोनों सही है मगर दोनों कैसे सही है ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। मैंने अपने दिल से कहा ऐ मेरे इमाम, ऐ इमाम आजम अबू हनीफा, आपका उम्मत पर एहसान है, आपने ऐसे उसूल व ज़वाबित बता दिए कि कयामत तक अगर कोई भी मसला इस्लाम के खिलाफ लेकर के आएगा और इस्लाम की किसी बात को कोई चैलेंज करेगा तो आपके बताए हुए उसूलों की रोशनी में उसका जवाब दिया जा सकता है। इसने अगर तकलीद इमाम आजम, तकलीद इमाम शाफी और तमाम अइम्मा अरबा में से किसी की तकलीद की होती, उसूल ज़ाब्ते पढ़े होते तो आज ये फंसता नहीं, ये भी बता देता। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं दो जुमले बोल रहा हूं, जरा आप बताइएगा। मैं कह रहा हूं मैं मौजूद हूं और फौरन मैं कह रहा हूं मैं मौजूद नहीं हूं। बताइए मेरी दोनों बात सही होगी? बोलिए, डरिए नहीं, मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेला हूं, आपका मैं क्या कर सकता हूं? मेरी दोनों बात सही होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं होगी तो मैं कहूंगा कि मेरी दोनों बात सही होगी। उलमा से पूछेंगे, कहेंगे दोनों बात सही है। मैं मौजूद हूं और मैंने कहा मैं मौजूद नहीं हूं। किसी आलिम की अगर बात आप सुने तो फौरन ये न कह दे अभी तो ऐसे कह रहा था फिर ऐसे कह रहा है, इसलिए कि इल्म वाला बहुत दूर से कभी कभी बोलता है। मैं मौजूद हूं, मैं मौजूद नहीं हूं, मेरी दोनों बात सही है। आप कह रहे हैं कि एक सही है मगर मैं कह रहा हूं दोनों सही है। जब आप मेरी बात का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो अल्लाह के कलाम को इतनी आसानी से कैसे कोई समझ सकता है? रसूल पाक की हदीसों को कोई इतनी आसानी से कैसे समझ सकता है? मैं मौजूद हूं, मैं मौजूद नहीं हूं। आपने कहा कि एक ही सही होगा, दोनों कलाम सही नहीं होगा, मगर मैंने कहा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं ये सही कह रहा हूं। मैं मौजूद हूं कुर्सी पर, मौजूद नहीं हूं बगल में। बात मेरी दोनों सही है। अब बताइए दोनों सही है कि गलत है? दोनों सही। अब देखिए कितनी जल्दी आप बदल गए। हाँ, हमारे यूपी के बगल में एक और सूबा है, वहाँ एक है पलटू चाचा, लोग उनको पलटू चाचा कहते हैं। तो आप लोग अल्टू पलटू मत बनिएगा, एक दर गिर मोहकम गिर, एक दरवाजे पे रहो, एक दर के गुलाम बन के रहो, मजबूती से उसी को पकड़े रहो। इसीलिए तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि सुलह कुल्लियत का लिबादा मत ओढ़ो, एक दरवाजे के गुलाम बन के रहो, एक दरवाजे के सच्चे गुलाम बन करके रहो। ये भी सही वो भी सही कह करके आप फंस जाएंगे, गाड़ी आगे नहीं खिसक पाएगी। मैंने कहा मैं मौजूद हूं और फौरन मैंने कहा मैं मौजूद नहीं हूं। आपने कहा कि दोनों बात सही नहीं हो सकती है। मैंने कहा मेरी दोनों बातें सही हैं। मैं मौजूद हूं कुर्सी पर, मौजूद नहीं हूं स्टेज पर बगल में, दोनों बातें सही हैं। इस तरीके के बेशुमार कलाम आपको अरबी में, उर्दू में, फारसी में, मुख्तलिफ जबानों में मिल जाएंगे। जब मैंने उससे कहा बताओ, आप कह रहे हो कि हुजूर मुर्दा है माअज़ल्लाह और हदीस से साबित हो रहा कि नबी जिंदा है, तो दोनों में से सही क्या है? वो बेचारा परेशान बहुत देर तक मेरा हाथ पकड़ पकड़ करके कहता रहा, शेख इसका माना बताइए, इसका माना बताइए। जब बहुत देर तक मैंने उसको परेशान कर लिया तो सोचा लाओ इसको बता दूं कि आखिर मतलब क्या है, ताकि इसकी समझ में बात आ जाए। चुनांचे मैंने तफसील के साथ उसका मतलब बताया उसे, और मैंने उससे कहा कि सिक्के का एक रुख हमेशा देखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इस तरीके के दलदल में फंसे हुए हैं। तस्वीर दोनों तस्वीर सिक्के के दोनों रुख को देखिए, तब आपकी समझ में बात जल्दी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे अहले सुन्नत ने हर रुख को देख करके
کے راستہ متعین کیا ہے. اسی لیے دنیا کے کسی گوشے میں اہل سنت و جماعت کا فرد رہتا ہے، وہ بہت ہی اعتماد سے کہتا ہے. کسی اور سے پوچھے تم کس مسلک کے ہو، ارے اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا پڑی ہے. اور سنی سے پوچھے کہ میں سنی ہوں، تو وہ ڈٹ کر کے بولتا ہے کہ میں سنی ہوں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سنیت ہی حق ہے. یہی وہ طبقہ ہے جس طبقے کی قیادت سیدنا خواجہ غریب نواز نے کی ہے. یہی وہ جماعت ہے جس کی قیادت سیدنا غوث اعظم نے کی ہے. 1400 سال کے تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، صلحاء، نقبا، ابدال، اقباء، سادات، علماء حق جتنے آئے، سب نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو قوم تک پہنچایا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آبادی میں ایک شخص سنی صحیح العقیدہ ہے، ایک شخص پوری آبادی میں سنی صحیح العقیدہ ہے، تو وہ جماعت ہے، وہ تنہا جماعت ہے، وہ تنہا سواد اعظم ہے. تنہا وہ جماعت کیسے ہے، تنہا وہ سواد اعظم کیسے ہے، ایک ہے جماعت کیسے ہے، ایک ہے سواد اعظم کیسے ہے. علماء فرماتے ہیں چونکہ وہ عقیدہ اہل سنت پر قائم ہے، اور عقیدہ اہل سنت وہ ہے کہ جس کے دلائل اور جس کے متبعین اس وقت سے لے کر کے صحابہ تک، تو گویا وہ جس جماعت کی پیروی کر رہا ہے وہ صحابہ تک اسی کی جماعت ہے. تو وہ تنہا ہونے کے باوجود جماعت اس لیے ہے کہ اس کی پشت پر جماعت صحابہ کا ہاتھ ہے، اس کی پشت پر جماعت اہل بیت کا ہاتھ ہے، اس کی پشت پر ائمہ مجتہدین کا ہاتھ ہے، اس کی پشت پر دلائل کا انبار ہے. تو تنہا ہونے کے باوجود وہ تنہا نہیں ہے بلکہ پوری جماعت ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے اسے مطلب سمجھایا، پھر وہ مان گیا، کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو نوجوان اس وقت گمراہی کے دلدل میں جا رہے ہیں کہتے ہیں یہ تو بہت شاندار تقریر کرتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چینل پہ آ جائے وہ بہت بڑا مولانا ہوتا ہے، جو یوٹیوب پر آ جائے وہ بڑا قابل ہوتا ہے، جو لچھیدار تقریر کر لے وہ بڑا قابل ہوتا ہے. بہت ہی صحیح بات کہتا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھئے، انصاف و دیانت سے یہ بتائیں گے کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. بے شک حق ہے. واہ. کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے، نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی سے مانگنا شرک اور کفر ہے. آپ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہیں، آپ کہتے ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں، سب حدیث پڑھتے ہیں. قرآن آپ پڑھیے، قرآن کریم فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ کہہ دو کہ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. ایک انجینئر اور ایک چپراسی دونوں برابر ہیں؟ ایک ڈاکٹر ایم ڈی اور ایک 4th کلاس کا آدمی دونوں برابر ہیں؟ جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، ان کو کبھی جھاڑو لگانے والے کے ساتھ کھڑا کر دیجئے اور کہیے آپ اور آپ دونوں برابر ہیں. ابھی دیکھیے پارا کتنا گرم ہو جائے گا. کیا بات کرتے ہیں مولانا، میں نے 10 سال پڑھائی کی ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا، آپ کہہ رہے ہیں دونوں برابر. میرے بھائیو اگر یہ دونوں برابر نہیں، آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خصلتان لا شیء افضل منہما. 2 خصلت و عادت ایسی ہے کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی خصلت و عادت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 صفت ایسی ہے کہ اس سے بہتر اس دنیا میں کوئی صفت نہیں، اس سے بہتر کوئی خصلت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ والنفع للمؤمنین. سب سے پہلی خصلت پوری کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ہے، رسول پاک فرماتے ہیں وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی خصلت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خصلتان لا شیء افضل منہما. 2 خصلت ایسی کہ اس سے بہتر کوئی خصلت نہیں. ایک ہے ایمان اور دوسری خصلت ہے والنفع للمؤمنین، مومنین کو نفع پہنچانا. اور رسول پاک فرماتے ہیں 2 خصلت ایسی ہے کہ اس سے بدتر، اس سے بری کوئی خصلت نہیں ہے. ایک ہے شرک باللہ والضرر للمؤمنین، ایک خصلت ہے شرک و کفر کرنا، اور دوسری خصلت ہے اہل ایمان کو ضرر و نقصان پہنچانا. اللہ کے
रसूल फरमाते हैं सबसे आला सिफत ईमान है और सबसे बदतरीन सिफत का नाम कुफ्र है। रसूल पाक जिसे सबसे बदतर कहें, जिसे कुफ्र कह करके दुनिया वालों के सामने उसकी मजम्मत करें और फरमाए ईमान सबसे आला सिफत है और कुफ्र सबसे बदतर हालत है, आप कहें कि दोनों बराबर है। कैसे मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं? रसूल पाक ने ईमान को सबसे अजीम सिफत करार दिया है, कुफ्र और शिर्क को सबसे बदतरीन सिफत करार दिया है। अल्लाह के रसूल जिसको सबसे आला कहें उसे, और कुफ्र जिसको सबसे बदतर कहें, आप कहते दोनों बराबर हैं। अब अगर आपसे कहा जाता है कि हजरत, आपसे कहा जाता है कि आप समझिए सब बराबर नहीं, तो आप कहते हजरत सभी तो कुरान पढ़ते हैं, सभी तो हदीस पढ़ते हैं, आखिर हम समझे कैसे कि कौन सही है? ये भी आपका फरेब है, धोखा है, ये फरेब नफ्स है। एक मिसाल से मैं आपके सामने बात अपनी रखूंगा। ये आप देख रहे हैं चांदनी लगी हुई है, दीवार चांदनी की, कपड़े की दीवार है, उसके पीछे क्या है आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर एक आवाज उधर से आ जाए, म्याऊं म्याऊं, मैं आपसे पूछूं किस चीज की आवाज है, आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। बिल्ली। अब की अपनी बात से इधर उधर मत होइएगा। क्या कहा जाएगा? हम भी आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? और अगर भोंभों की आवाज आ जाए क्या होगा? चलिए, ज्यादा मिसाल देने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत ही समझदार हैं। इंसाफ से बताइएगा, मैंने आपसे जब कहा कि ये म्याऊं म्याऊं की आवाज है, किस चीज की आवाज है, तो आपने फौरन कह दिया। आपने मुझसे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लिया कि हजरत हमने तो देखा नहीं है, जरा चल करके देख लें, जरा तहकीक कर लें, जरा उधर जाएं देखें किस चीज की आवाज है। आप इतना तजर्बा रखते हैं और आप इतने होशियार हैं, आप इतने अक्लमंद हैं कि आवाज सुन करके जानवर की हकीकत को समझ जाते हैं। आपने आवाज सुनी और आपने हकीकत को समझ लिया कि बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, ये गधा। आवाज को सुनते ही फौरन आप फैसला, बोलिए आगे, कर लेते हैं ना। आपने मौका लिया कि जरा तहकीक कर लें? नहीं। तो आप तो इतने समझदार हैं, आपकी आंख इतनी तेज है कि पर्दे के पीछे क्या है बगैर देखे आप देख लेते हैं। आवाज को सुन करके आप समझ जाते हैं कि ये क्या है। अगर आपके पास इतना शोर है, और है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास इतनी समझ है और है, अल्लाह ने आपको समझ दी है कि आप एक आवाज सुनते हैं और फैसला कर लेते हैं कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता है, तो मुझे बताइए, एक आवाज, अभी रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है तो उसमें आएगी, झंडे लगाना कहां से साबित है? जुलूस करना कहां से साबित है? जुलूस मोहम्मदी निकालना कहां से साबित है? महफिल मिलाद मुनाकिद करना कहां से साबित है? खड़े होकर के तुम लोग सलाम पढ़ते हो कहां से साबित है? या रसूल अल्लाह कहना कहां से साबित है? ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये बिदात है। एक आवाज आएगी, आएगी ना? नहीं आती है? आती है। तो आवाज आती है मिलाद मनाना बिदात है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। और दूसरी आवाज आती है मिसले फारस जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है नबी कुछ नहीं देते हैं, दूसरी तरफ से आवाज आती है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक तरफ से आवाज आती है या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, और दूसरी तरफ से आवाज आती है गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है नबी नहीं सुन सकते उनको क्या तुम पुकारते हो, और दूसरी तरफ से आवाज आती है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। एक तरफ से आवाज आती है वो दूर से कैसे सुनते हैं, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। इंसाफ से बताइएगा, एक कहने वाला कहता नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं, और उधर से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इंसाफ से बताइएगा, ज्यादा लंबी बात अब नहीं करूंगा, क्या दोनों आवाज एक जैसी है? दोनों आवाज एक जैसी है?
اگر آپ بلی کی آواز کو سن کر اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کو پردہ ہٹا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو یہاں آپ کیوں کہتے ہیں کیسے سمجھیں؟ کسی کا دل ہم نے تھوڑی دیکھا ہے۔ اگر آپ بلی کی آواز کو سن کر کے اس کی حقیقت تک پہنچ جا رہے ہیں تو ان دونوں آوازوں کو سن کر کے بھی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دونوں آواز ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک اگر وفادار مصطفیٰ کی آواز ہے تو دوسری غدار مصطفیٰ کی آواز ہے۔ دونوں آواز ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب دونوں آواز ایک جیسی نہیں تو دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں سب برابر ہے، اس کا مطلب ہے اس نے ابھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اس نے ایمان کو جانا ہی نہیں۔ جو کہے نبی کچھ نہیں دے سکتے اس کا بھی عقیدہ صحیح، اور جو کہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دونوں کا عقیدہ ایک جیسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے رفیقان محترم جو کہے سب برابر ہے اس سے برا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ حق ہے، بے شک حق۔ واہ واہ۔ آپ کہتے ہو حالات خراب ہیں، اسٹیج پر بات میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن حالات اتنے خراب ہوئے، کتنے مسلمان، کس آبادی کے مسلمان ہیں جنہوں نے آپس میں مل کر کے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے گاؤں میں، ہماری آبادی میں جو مسائل کورٹ میں چل رہے ہیں، کچہری میں چل رہے ہیں، کوتوالی میں چل رہے ہیں، جب اللہ و رسول نے ہم کو پورا ضابطہ دیا ہے تو ہم اپنے علماء سے ان مسائل کو حل کرا لیں گے۔ ہمیں کورٹ کچہری میں اپنی زمین جائیداد کے سلسلے میں مقدمہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے مقدمات اٹھا لیے، کہتے ہیں حالات خراب ہے۔ ایک بالش زمین کا مسئلہ ہو، 1 میٹر زمین کا مسئلہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میں ہائی کورٹ تک لڑوں گا، تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر کس کے لیے؟ اپنی زمین کے لیے۔ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں کس کے لیے؟ اپنی انا کے لیے۔ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں اپنی موچ کو صحیح رکھنے کے لیے۔ تو یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ اس کے لیے لڑائی کریں۔ ہم کہتے ہیں آپ اس کے لیے لڑائی نہ کرو، جو رسول کا مخالف ہے اس سے لڑائی کرو۔ ہم کہتے ہیں آپس میں مت لڑو، زمین جائیداد کے مسائل کو علماء سے حل کرو، اور آپ کہتے ہیں جو شریعت کا مسئلہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں آپ علماء لڑاتے ہیں، اور اگر زمین جائیداد کی بات آتی ہے تو آپ پیسے دے کر کے لڑائی کرتے ہو، اپنے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کرتے ہو، کہتے ہو کہ حالات خراب ہیں۔ یہ آپ کا مکر ہے، شیطانی دھوکہ ہے، اس لیے کبھی اس جال میں مت پھنسیے گا۔ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے اس پوری دنیا میں۔ اس وقت آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کے لیے نہ تعلیم کا مسئلہ ہے، نہ آپ کے لیے غربت کا مسئلہ ہے، آپ کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ بے شک حق ہے۔ یہ تحفظ عقائد اہل سنت بموقع جشن امام احمد رضا، عرس امام احمد رضا منعقد کر کے آپ نے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ اگر آپ اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکتے ہیں، چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ سلامت رہے، تو ہر جگہ منہ مت ماریے، سب کو ایک جگہ جیسا مت کہیے، یہ غلط ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہو سکتی ہے کہ حلوہ اور گوبر دونوں کو ایک اگر کر دیا جائے، بتائیے کتنا شاندار ایک نقشہ تیار ہوگا کھانے کے لائق۔ بتائیے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ تصور میں چاہیے، گھر میں فریج ہر ایک کی ہوگی، مالک نے لا کر کے گھر میں مٹھائی رکھی، شاندار مٹھائی، اور گجرات کی مٹھائی پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ ہم لوگوں کے دسترخوان پر کبھی کبھی ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مٹھائی تو گجرات والے کھاتے بناتے ہیں، اور آنے کے بعد سب سے پہلے کھانے پہ مٹھائی ہی کھلائی جاتی ہے۔ منہ میٹھا کرنا یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ اس محبت کی علامت کو باقی رکھے۔ مٹھائی لا کر کے رکھی گئی فریج میں، اتفاق سے فریج، مثال کی دنیا میں جائیے، فریج جہاں پر رکھی تھی گھر کا مین دروازہ کھلتا تھا تو سامنے ڈسٹ بین، کوڑا دان تھا، اتفاق سے اس کوڑے دان پر گوبر پڑا ہوا تھا۔
फिर इसका दरवाजा खुला, इत्तेफाक से घर का भी दरवाजा खुला था। मोहतरमा मिठाई ने देखा कि जनाबे गोबर पर कोई मूत रहा है, कोई लात मार रहा है। मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया, उसने वहीं से कहा आ जाओ, देखो मैं फ्रिज में हूं, एसी में रहती हूं, तुम भी आ जाओ। जनाबे गोबर ने मौका गनीमत जाना, वो दर्न से दोस्ती कर ली और दोनों गले मिल गए, खूब मुसाफा मुआनका हुआ। मुझे बताइएगा अब वो मिठाई जनाब मोहतरमा और जनाबे गोबर अब कहाँ रहेंगे? दोनों कहाँ रहेंगे? फ्रिज में? फ्रिज में? अगर मालिक ये कहेंगे नहीं दोनों फ्रिज ही में रखे जाएंगे, तो घर की मलिका कहेगी खबरदार, ले जाइए उसी कूड़ेदान पर फेंकाइए, अब इसको फ्रिज में नहीं रहना है। और अगर आप जलाल दिखाएंगे कि फ्रिज मैं खरीद के लाया हूं, तो वो भी जलाल दिखाएंगी कि आप खरीद करके लाए हैं, मगर सफाई मेरी तरफ से होती है, साफ मैं करती हूं। आप लेके आए हैं जरूर, लेकिन इसकी गंदगी को साफ करने का काम मैं करती हूं, ले जाइए कूड़ेदान पे फेंकिए। और अगर आपने ज्यादा जलाल दिखाया तो फिर उसके बाद शाम को चाय वक्त पे नहीं मिलेगी, समझ लीजिएगा। मजबूर होकर के आपने मिठाई को ले जाके कूड़ेदान पे फेंक दिया। बताइए नुकसान किसका हुआ? गोबर का नुकसान हुआ या मिठाई का? क्या समझाया आपने? जनाबे गोबर तो पहले भी कूड़ेदान पर थे, मिठाई से मिलने के बाद भी वहीं गए। नुकसान मोहतरमा मिठाई का हुआ कि वो अब तक एसी में रहती थी, उसे भी उठा करके कूड़ेदान पर फेंक दिया गया। इसे पता चला कि हमेशा नुकसान अच्छे ही का होता है, बुरे से मिलेंगे, नुकसान बुरे का नहीं, नुकसान अच्छे का होगा। कोई बाप अपने बेटे से ये नहीं कहता है वो शराबी है, बेटा तुम भी उसके साथ रहो, हो सकता है तुम्हारे साथ रहने से वो सही हो जाए। कोई बाप ऐसा कहता है? नहीं। क्या कहता है? अगर तुमको मैंने उसके साथ देख लिया तो तेरी खैरियत, क्यों नहीं आप कहते हैं बेटा ठीक है तुम भी उसके साथ रहो। अरे तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम भी उसी मोहल्ले को, वो भी इसी मोहल्ले का, तुम दोनों हो सकता है तुम्हारे साथ रहने से वो सही हो जाए। इसलिए कि आप समझते हैं कि मेरा लड़का उसको तो सही नहीं कर पाएगा, हाँ तजर्बा ये बता रहा है कि वो इसको खराब है ना। इसका मतलब है कि नुकसान अच्छे का होता है। ऐ सुन्नियों, आपका अकीदा मिठाई से भी ज्यादा मीठा है, आपका अकीदा मिठाई से भी ज्यादा हलावत और शीरीनी रखता है, आपका अकीदा गुलाब की तरह खिल रहा है। अगर बदअकीदों के साथ आपने मिलाप किया तो उनका नुकसान नहीं होगा, वो तो पहले ही से जहन्नमी है। मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा का फरमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरी उम्मत 73 तबकों में बटेगी, एक जन्नती होंगे बाकी सब जहन्नमी होंगे। रसूल पाक से जब पूछा गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं मेरे सहाबा है वो जन्नती है, उसके अलावा 72 जहन्नमी है। तो अहले सुन्नत के अलावा जो भी किसी और तबके में गया वो रसूल पाक के फरमान के मुताबिक गोया जहन्नमी हुआ। ऐ सुन्नियों, अल्लाह ने आपको जन्नती जमात में पैदा किया है। अगर आपने बदअकीदों से दोस्ती की तो उनका नुकसान नहीं होगा, वो तो पहले ही से जहन्नमी है, अब भी रहेंगे। नुकसान आपका होगा कि जन्नत की बहारों से निकाल कर जहन्नम के दहकते हुए शोले में डाल दिए जाएंगे। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ईमान सलामत रहे, आप ये चाहते हैं कि आपका अकीदा दुरुस्त रहे, आप ये चाहते हैं कि रसूल पाक की शफाअत कल मैदान महशर में आपको मिले, अगर आप ये चाहते हैं कि जन्नत में हसनैन करीमैन की क़यादत में दाखिला हो, अगर आप ये चाहते हैं कि फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के फैज़ व बरक़ात आपके घर में आए, तो आप इनके दुश्मनों से दुश्मनी बरतें, इनके दोस्तों से वफादारी करें, तब अल्लाह और रसूल की रज़ा आपके साथ होगी। इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहाँ भी
क्या बेशक हक रहेंगे। है, वाह। आपने तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद बमौक़े उर्स आला हजरत करके ये पैगाम देना चाहा है कि अगर अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो इमाम अहमद रजा की तालीमात से होगा। इमाम अहमद रजा की तालीमात में है मसलके आला हजरत पर अगर आप कायम रहेंगे तो आपके अकीदे की हिफाजत होगी। एक एक अकीदे की अगर मैं तफसील बताऊं और दूसरों की बदअकीदगी का तज़किरा करूं, दफ्तर का दफ्तर तैयार हो जाएगा। जब मैंने पहली बार आपके सामने बदअकीदों के अकीदे का तज़किरा शुरू किया तो उसमें मैंने पहले बयान किया, बदअकीदों की एक जमात कहती है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। इसके खिलाफ इमाम अहमद रजा ने एक किताब लिखी जिसका नाम है सुबहान सुब्बुह अन ऐबे किज़्ब मक़बूह। 200 दलीलों से इमाम अहमद रजा ने इस बातिल नजरिए का ऐसा रद्द किया है कि 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। पूरी उस जमात की पूरी जमात, उस जमात का हर फर्द आज तक सख्ते में है और पूरी जमात में कोई ऐसा फर्द नहीं तैयार हो सका जो इस किताब का जवाब दे सके। आला हजरत ने एक दूसरी किताब लिखी जिसका नाम है अल क़मउल मुबीन लिआमालिल मुकज़्ज़िबीन। रसूल पाक और अल्लाह तबारक व तआला को झूठा करार देने वाले और अल्लाह के लिए झूठ बोलने को सही करार देने वाले और ये कहने वाले कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसे बदअकीदों का रद्द करने के लिए इमाम अहमद रजा ने ये किताब लिखी। पूरी दुनियाए नज़रियत इन दोनों किताबों का जवाब देने से लाजवाब है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लाजवाब रहेगी। एक शख्स ने जब रसूल पाक के इल्म गैब पर एतराज किया तो मक्के मुकर्रमा में 8 घंटे में इमाम अहमद रजा ने अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया किताब लिख करके उलमाए हरमैन को हैरान व शस्तर कर दिया। ये वो किताब है कि जब आला हजरत मक्के मुकर्रमा में तशरीफ फरमा थे, वहां के एक आलिम ने आला हजरत से सवाल किया, आला हजरत ने वहां 8 घंटे में जवाब दिया और उस वक्त का जो गवर्नर था उसे उस जमाने में शरीफ मक्का कहा जाता था। उलमाए अहले सुन्नत में जो जलीलुल कद्र आलिम थे वो उस वक्त गवर्नर मक्का के दरबार में रात में बैठकर मशवरा दिया करते थे, मशवरा देते थे। शरीफ मक्का गवर्नर मक्का के सामने ये किताब पहुंची कि हिंदुस्तान से मौलाना अहमद रजा हिंदी ने आकर के ये किताब लिखी है, अगर इजाजत हो तो किताब पढ़कर सुनाई जाए। 12 बजे रात तक आधी किताब पढ़ी गई और दूसरे दिन 12 बजे रात तक आधी किताब पढ़ी गई। किताब उलमाए मक्का सुनते जाते थे, इमाम अहमद रजा के फजलो कमाल का एतराफ करते जाते थे और गवर्नर मक्का बार बार ये कहता था अल्लाहु युअती व हाउलाई यमनऊन। खुदा तो अपने महबूब नबी को इल्म गैब दे रहा है, ये वहाबिया इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब है इमाम अहमद रजा ने अद-दौलतुल मक्किया लिख करके पूरी दुनियाए अरब व अजम को सही राह दिखा करके उनके ईमान की हिफाजत। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। किसी शख्स ने हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ताल्लुक से लबकुशाई की और इस्लाम के पहले की बात कुछ कही। आला हजरत का कलम जलाल में आ गया और आपने फौरन एक किताब लिखी अल मकानतुल हैदरिया और इस किताब में आपने दलाइल ऐसे दिए कि जिससे अजमत मौलाए कायनात का सूरज निस्फ़ुन नहार पर था और है इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। आला हजरत ने उस किताब में साबित किया दलाइल के जरिया कि हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने हमेशा कुफ्र व शिर्क की नजासत से महफूज रखा। कभी उनके दामन पर कुफ्र व शिर्क का धब्बा नहीं लगा। इस्लाम लाने से पहले भी कभी उन्होंने बुत परस्ती की तरफ तवज्जो नहीं की, कभी आपने बुत परस्ती नहीं की। आपका दामन नेकियों से भरा हुआ था और इस्लाम से पहले कुफ्र की आमेजी से पाको साफ था। किताब का नाम है अल मकानतुल हैदरिया, उसका मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा। सैयदना गौस आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जिनको हम गौसुस सकलैन कहते हैं, नजीबुत तरफैन कहते हैं, सैयदुल मलवैन कहते हैं, मुफ्ती सकलैन कहते हैं, न जाने कितने बेहतरीन अलकाब से याद करते हैं। एक बेहुदा गुस्ताख ने सैयदना
मौलाना गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में फरमाया, वो तो सैयद थे ही नहीं, सुन्नियों ने उनको सैयद बना दिया है, वो सुन्नी थे ही नहीं। आला हजरत ने सुना तो कलम चलाया, और सिर्फ यही नहीं कि नस्र में बल्कि नज्म में आपने उस बातिल नजरिए का रद्द करते हुए फरमाया, तू हसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिज़िर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। इमाम अहमद रजा के सामने जब किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी करने वाले की कोई इबारत आई, इमाम अहमद रजा ने फौरन अपना कलम चलाया और फरमाया, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। एक शख्स ने कहा अजमेर को शरीफ नहीं कहना चाहिए, उसी कहने वाले ने फिर कभी कहा होगा, या उसी फिक्र की किसी आदमी ने कहा होगा, वो गरीब नवाज कैसे हो गए। फतावा रज़विया उठा करके देखिए, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हजरत सीदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो को गरीब नवाज न माने तो ये उसकी गुमराही है, और अगर अजमेर को वो शरीफ न कहे, अगर पर बिनाए वहाबियत कहता है तो वहाबियत खुद गुमराही है। इमाम अहमद रजा ने अपने बुजुर्गों पर होने वाले हर हमले का दिफा करके अहले सुन्नत के अकीदे की हिफाजत फरमाते। मुझे अच्छी तरह से याद है कि चोचा शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ है। ये हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शेख और मुर्शिद हैं, हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान साहिब आलिम अहले सुन्नत के फतवों पर अमल करना वाजिब है। सुभान अल्लाह। और यही हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चौचवी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया कि जुमा का दिन था, हुजूर अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह वजू फरमा रहे थे, इसी दरमियान आंखों से आंसू जारी हो गए। बाद में लोगों ने पूछा, हुजूर क्या किसी कीड़े ने काट लिया, किसी ने तकलीफ पहुंचा दी, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं फरिश्तों के कांधों पर कुतुबे इरशाद का जनाजा जाते हुए देख रहा हूँ, और शाम होते होते बरेली से तार पहुंचता है कि इमाम अहमद रजा का इंतकाल हो गया। कि छौछा में बैठकर बरेली के उस कुतुबे इरशाद के जनाजे को फरिश्तों के कंधे पर जाते हुए किछौछा में देख रहे हैं। कहाँ है गाफिल लोग जो कहते हैं नबी नहीं सुनते हैं। ये नबी नहीं है, नबी की खानदान के हैं, नबी के गुलाम है, नबी की उम्मत में है। किछौछा में बैठकर बरेली में होने वाले हाल अगर आले रसूल जान रहे हैं तो मदीने में जलवा फरमा होकर अगर भुज के मुसलमानों के हालात को रसूल पाक जाने तो इसमें कौन से ताक़त। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत के मानने वाले सैयद साहब लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, इसीलिए बहुत सारी जगहों पे हमसे फरमाइश की जाती है कि जरा कुछ इस हवाले से बयान कर दीजिए। चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त अगर कोई शख्स सूरज का इनकार करे तो ये उसका पागलपन तो कहा जा सकता है, उसकी अक्लमंदी कही जा सकती है। इमाम अहमद रजा का अभी नारा एक साहब ने लगाया कि पालकी में बैठ करके जिसने सैयदों का एहतराम सिखाया उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। आला हजरत की बारगाह में जब लोग बैठते थे, शीरीनी अगर फातिहा होती थी, शीरीनी पर फातिहा दी जाती थी। आम दस्तूर था आला हजरत के दरबार का कि सबको अगर एक एक मिठाई मिलती थी तो सैयद लोगों को दो दो मिठाई मिलती थी। इमाम अहमद रजा की बारगाह का ये दस्तूर था कि और लोगों को अगर एक हिस्सा मिलता था तो सादाते किराम को दो दो हिस्सा मिलता था। ये आला हजरत के दरबार में एहतराम सिखाया गया था। और एक नहीं, आपको सैकड़ों वाकयात किताब में लिखे हुए मिलेंगे कि इमाम अहमद रजा ने जिस तरह हमें निस्बते रसूल की बुनियाद पर सादात और अहले बैत और सहाबा की अजमत सिखाई, उसी का नतीजा है कि हमारे दिल में अजमत सादात भी पाई जाती है और अजमत सहाबा का चिराग भी हमारे दिल में जल रहा है। आला हजरत तो बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। अभी इंशाअल्लाह उर्से रज़वी में
मेरी एक किताब आ रही है करामात आला हजरत, वाह वाह वाह। तकरीबन 250 सफ़े की किताब है, कल छपने के लिए जा रही है। मैंने आला हजरत के हवाले से वाक़यात को जमा किया, इस तरह से जो हैरत अंगेज नादिरुल वक़ू जिसे मोजज़ा और जिसे करामत कहा जाता है, वो सब मैंने इकट्ठा किया। इंशाअल्लाह छप करके आएगी, मौका मिले उस किताब को पढ़िएगा। आला हजरत बड़ी ऊंची जात है। कुछ लोग कह देते हैं अरे वे खान साहब है, मौलाना साहब है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कह करके तहकीर आप करके क्या कहना चाहते हैं? हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी हजरत अल्लामा शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका मज़ार मुबारक सरहिंद शरीफ में है, मर्जे खलाइक बना हुआ है, वो फरमाते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के तमाम औलिया का सरदार होता है। जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के तमाम अक्ताबो अब्दालो औतादो नुखबा नुजबा का कमीरे कारवा होता है, और जिसको जो फैज मिलता है उस जमाने के मुजद्दिद से मिलता है। ये हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी ने तहरीर फरमाया है। इसलिए आला हजरत की जात तो बहुत बड़ी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप अपनी आंखों से देखा। एक दिन हुजूर ताज शरिया की बारगाह में मैं बैठा था, और ये उलमा अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मुझ पर अब्र करम बनकर किस तरह बरसते थे। हुजूर ताज शरिया ने इस फकीर को जितना नवाजा, उस पर ये फकीर जितना भी फख्र करे कम है। अलल ऐलान मैं कहता हूँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। हुजूर ताज शरिया बेपनाह करम फरमाते थे इस फकीर पर, बहुत नवाजिश फरमाते थे। एक मरतबा में पहुंचा, इत्तेफाक से हजरत खलत कदे में तशरीफ फरमा थे, जहां पर आराम फरमाते थे वहीं पर हजरत जलवा फरमा थे। सुना कि अख्तर हुसैन कादरी आया हुआ है, अंदर बुला लिया। मैं गया, बैठा हुआ था, हजरत ने खैरियत पूछी। थोड़ी देर के बाद एक साहब ने और आवाज दी। खादिम ने कहा हुजूर बहुत देर से परेशान हैं, गालिबन अपनी वालिदा या अपनी अहलिया को लेकर आए हुए हैं, मुरीद करा दीजिए, मुरीद करा दीजिए। बार बार मुझसे कह रहे हैं हुजूर अगर इजाजत हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी उन्हीं को बुला लिया। हजरत ने फरमाया ठीक है बुला लो। चुनांचे वो आलिम सूरत थे, आए, निकाब पोश एक खातून भी उनके साथ आई, किनारे बैठ गई। हुजूर ताज शरिया ने मुरीद किया, कलमात तलकीन फरमाए, और फिर वो चले गए। मैं बैठा ही था। थोड़ी देर के बाद 8-9 साल का एक बच्चा घर के अंदर से आता है, और उसने हुजूर ताज शरिया के कान में कुछ कहा। हुजूर ताज शरिया ने फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, पर्दा किया जाए। सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया, पर्दा किया जाए। ये मैं अपनी आंखों से देखी बात बयान कर रहा हूं, लतीफा और किस्सा कहानी और फर्जी करामत नहीं बयान कर रहा हूं। बैठा हुआ था मैं, ये बेड समझिए और ये दीवार। हुजूर ताज शरिया तशरीफ फरमा थे। हजरत ने फरमाया पर्दा किया जाए। इतने में वो बच्चा अंदर से एक बड़ी सी चादर लाता है, और वो चादर हुजूर ताज शरिया के बेड से तान दी जाती है। अब दीवार है और इधर चादर है, बीच की जगह खाली है। उसके बाद एक कुर्सी लाके रखी जाती है। थोड़ी देर के बाद एक खातून निकाब पोश उधर आती हैं। उन्होंने भी कुछ अर्ज किया। हुजूर ताज शरिया ने उनका जवाब दिया, कुछ दुआ बताई। थोड़ी देर के बाद वो चली गई। मगर ये बात मुझे खटकती रही कि इधर से एक खातून आई, वो भी निकाब पोश थी, मगर उनके लिए न कुर्सी लगाई गई, न उनके लिए चादर का एहतमाम किया गया। आखिर क्या वजह थी कि इधर से एक खातून आती हैं तो उनके लिए ये पर्दे का एहतमाम और कुर्सी लाकर रखी गई? ये बात मुझे खटकती रही, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हुजूर ताज शरिया से पूछता। वहां से जब मैं निकला, मैंने बुलाया खादिम को, यूसुफ नाम है उस खादिम का। मैंने कहा यूसुफ इधर आओ। आया। हमने कहा अच्छा ये बताओ, ये दो मंजर मैंने क्यों देखा? एक औरत उधर से आती है तो उसके लिए कोई एहतमाम नहीं, आई वो बैठी, हुजूर ताज शरिया ने मुरीद किया, वो चली गई। और एक खातून इधर से आती हैं, मगर उनके आने से पहले बाकायदा पर्दे के लिए चादर तानी गई, कुर्सी बिछाई गई। ये एहतमाम क्यों किया गया? ये फर्क क्यों है? उस यूसुफ खादिम ने जो मुझे जवाब दिया है, आप उस जवाब को नोट करिए। और जो लोग कहते हैं कि आला हजरत के मानने वाले रज़वी हजरात सादात का एहतराम नहीं करते हैं, उनके मुंह पर इस वाक़े को सुना सुना करके
खुशियों के फूल उनके चेहरे पर बिखेरते रहिए और मोहब्बत की खुशबू उनके चेहरे पे मलते रहिए। जब मैंने पूछा तो उस खादिम ने जवाब दिया, उधर से जो आई थी उनके बारे में ये तो नहीं मालूम है कि वो कौन हैं और कहां से आई हैं, बस ये हुआ कि ये खातून अपने किसी आदमी के साथ आई हुई हैं, तो उनको बुला लिया हजरत ने और मुरीद कर दिया। मगर अंदर से जो खातून आई उन्होंने कहा कि मैं सैयदानी हूं। जो ही हुजूर ताजुश शरिया ने सुना कि ये सैयदानी हैं, ये सैयदा हैं, तो आपने फरमाया पर्दा किया जाए, आपने फरमाया कुर्सी लगाई जाए। इसका मतलब है आज भी इमाम अहमद रजा के घर में सादात का वही एहतराम होता है। एक खातून आती है तो उसके लिए ना कुर्सी है ना उसके लिए चादर का एहतमाम है, मगर एक दूसरी खातून आती है तो उसके लिए कुर्सी लगाई जाती है, उसके लिए चादर का एहतमाम किया जाता है, पर्दा किया जाता है और पूछने पर जवाब दिया जाता है। चूंकि वो सैयदा थी इसलिए उनके लिए इतना एहतराम किया गया है। आप मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं कि सादात का एहतराम रज़वी नहीं करते हैं, वो क्या इस तरीके का एहतराम अपने घरों में करते होंगे? सादात के साथ ऐसे ही सुलूक करते होंगे? ये इमाम अहमद रजा का खानवादा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत से ऐसे सादात जिनकी उम्र कम है, जो इल्म के एतबार से कम है, लेकिन उन्होंने अगर कह दिया ताजुश शरिया से हजरत में सैयद फला, हजरत ने फौरन उसका हाथ चूम लिया। ये हुजूर ताजुश शरिया को हमने अपनी आंखों से देखा है। जो लोग कहते हैं कि सादात का एहतराम वहां से नहीं सिखाया जाता, वो आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं, तफरीक बैनल मुस्लिमीन का काम कर रहे हैं, आला हजरत से अपनी बुग़्ज़ व अदावत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। सच्ची बात यह है, सादात का एहतराम हमने अगर सीखा है तो दरे रजा की बरकतों से सीखा। बेशक ना, सुभान अल्लाह, इसलिए जो सुभान इस तरह की बातें करते हैं, मैं सादात किराम से कहूंगा कि आप उनके इस बहकावे में आने के बजाय आप वाक़यात पढ़िए, आला हजरत की सीरत पढ़िए, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का तरीका पढ़िए, ताजुश शरिया की आप समाने पढ़िए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा निस्बत रसूल का एहतराम जिस तरह से खानवादे रज़विया के यहाँ सिखाया जाता है। आप खुद समझ जाएंगे कि ये मोहब्बत की किस बुलंदी पर हैं। जो लोग इस तरीके की बातें करके अवाम में इंतशार पैदा करते, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है किसी के लिए, सुभान अल्लाह, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, सुभान अल्लाह। इस कायनात में सबसे अजीम नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है, उस नेमत का नाम बोलिए ईमान है। उस नेमत का नाम हुस्न किस कौम के पास नहीं है? कौन सी कौम है जिसके पास हुस्न नहीं है? हमसे आपसे ज्यादा दूसरों के पास हुस्न है। हुस्न को नेमत समझने वाले, ठीक है नेमत अल्लाह ने दी है, मगर यही सब कुछ नहीं है। दौलत को सबसे बड़ी नेमत समझने वालों, होश के नाखुन लो, ये दौलत छिन जाएगी, लेकिन ईमान वो दौलत है कि कब्र में भी यही साथ जाएगी। इसलिए आला हजरत की इस बात पर अमल करो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। किसी माहौल में रहिए, किसी हालत में रहिए, मगर फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता गौस ख्वाजा से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमाया। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत एक बंदे के लिए यही है कि अल्लाह उसे दौलत ईमान अता कर दे। ये दौलत अल्लाह ने हमें दी है, हमें चाहिए कि इसकी हिफाजत करें, और इसकी हिफाजत का एक ही जरिया है कि मसलके आला हजरत के मजबूत किले में दाखिल हो जाइए, वरना देख नहीं रहे कैसे कैसे बहरूपिया। और आजकल तो ऐसा मेयार लोगों ने बना लिया कि बहरूपियों को भी लोग मुजद्दिद कहने लगे, है ना? तो बहरूपिया और मुजद्दिद, रोड पर लड़कियों को नचाने वाला मुजद्दिद, ईमान और कुफ्र को एक करने वाला मुजद्दिद, कहां खोपड़ी चली गई है लोगों की? अकलमंद बनते हैं, यदि ये दानिश्वर हैं, ये बैरिस्टर हैं, ये लायर हैं, अरे ये बड़े काबिल हैं, क्या शैतान से ज्यादा काबिलियत आ गई है? वो भी बहुत काबिल था। काबिलियत अलग चीज है, इल्म अलग चीज है, लेक्चर देना अलग चीज है,
तकरीर करना अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। ईमान की हिफाजत कीजिए। और जो लोग बहरूपियों को भी मुजद्दिद मानते हों, रोड पर लड़कियों को नचाने वालों को भी मुजद्दिद कहते हों, और कहते हों कि इससे बेहतरीन तकरीर कौन करता है, इससे बेहतरीन काम कौन करता है, ऐसे लोगों से आप अपने आप को बचाइए। दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, फिर उसके बाद में कब्र की तारीख कोठरी में जब आदमी जाएगा, न ये मुजद्दिद काम आएंगे, न बहरूपिये काम आएंगे, ईमान आपका काम आएगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया एक मौके पर मेरे गरीब खाना जलवागर हुए। मेरा गरीब खाना शहर खलीलाबाद यूपी गोरखपुर से करीब पड़ता है। हजरत मेरे घर जलवा फरमा हुए, जुमा का दिन था। हजरत ने जुमा में खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तन्हा जन्नत में नहीं, सबको लेकर के जन्नत में जाऊं। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया कि खुदा की कसम कहता हूं, ये हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया, खुदा की कसम मैं कहता हूं तुम सब लोगों को जन्नत में लेके जाऊंगा। कसम खा के फरमाया, खुदा की कसम कहता हूं तुम सब लोगों को जन्नत में लेके जाऊंगा, मगर शर्त यह है कि तुम वादा करो कि मैं मसलके आला हजरत ही पर कायम रहूंगा। तो आप जैसे इस वक्त समझ रहे हैं कि अख्तर हुसैन कादरी आपसे मुखातिब है, रात का वक्त है, उलमा बैठे हैं, जैसे इस बात पर आपको यकीन है, इससे ज्यादा इस बात पर यकीन रखिए कि अहले सुन्नत व जमात ही हक है। यही वो जमात है जो नाजी है, यही वो जमात है जिसका दाखिला जन्नत में होगा, यही वो जमात है जो सहाबा के तरीके पर है, यही वो जमात है जो हसनैन करीमैन के तरीके पर है, यही वो जमात है गौसो ख्वाजा ने जिसकी तालीम दी है। और हजरत सैयदना महबूब इलाही ने, हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने, हजरत सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने, बरकत मुस्तफा हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इसी मजहबो मसलक की तालीम दी है। इसी पर कायम रहें, इंशाअल्लाह यहां भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। नमाज पढ़िए, जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़िए, अहले सुन्नत के मजहब पर कायम रहिए, इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं है। जो बहरूपिये कीड़े मकोड़ों की तरह से निकल करके आपके बीच आ रहे हैं और उन्होंने एक फैशन बना रखा है कि पीछे 2-3 अलमारियां किताबों से भरी रख ली और आगे एक मेज और उस पर चंद किताबें रख ली और उसके बाद में दिखा करके ये बुखारी शरीफ, इसकी हदीस नंबर 92-3 देखो इसमें लिखा हुआ है। आप कहते अरे बहुत काबिल है, हदीस नंबर बता रहा है, यकीनन सही बता रहा है, लेकिन ऐसे बहरूपियों को लेकर के आइए। मैंने चंद मर्तबा ऐसों की तकरीरें सुनी, अपनी तकरीरों में 50 गलतियां, 50 झूठ, गुमराही की बातें, गलत सलत तर्जमे करके उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो किसी सच्चे आलिम के पास बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा। हिंदुस्तान में जब गुमराही की तहरीक चलाने के लिए दूसरे मुल्क का एक शख्स आया और उसने हिंदुस्तान में गुमराही और सुलह कुल्लियत और राफिजियत को फैलाना चाहा, अपने बड़ों के हुक्म से इस फकीर ने, अख्तर हुसैन कादरी ने, आज से 10 साल पहले उस शख्स के पास 9 सवालात लिख करके भेजे और उसके हाथ में दिए गए। आप तारीख पूरी उठा करके पढ़ लीजिए। इस मौजू पर हमारी किताब है, उसका नाम है, रिसाला है, अकायद व नजरियात, ताहिरुल कादरी अकायद व नजरियात, उसको पढ़ लीजिए। हजरत मुफ्ती वली मोहम्मद साहब जो नागौर शरीफ के हैं, उनकी किताब है इस मौजू पे तकरीबन 250 सफ़े की, उसको पढ़िए। सवालात मैंने मुरत्तब किया, 9 सवाल नेट पर आज भी सब मौजूद है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। और वो सवालात भेजे गए हैदराबाद, और किसके जरिया? किसी मामूली आदमी के जरिया नहीं, सी के जाफर शरीफ जो हिंदुस्तान के रेलवे मजिस्टर रह चुके हैं, वो उन सवालात को लेकर गए हैदराबाद, जिस होटल में जनाब ठहरे हुए थे, उनके हाथ में ले जाकर के दिया कि हिंदुस्तान के उलमा इन सवालों का जवाब चाह रहे हैं, मगर एक का जवाब नहीं दिया गया। आप लोग अभी दूसरी दुनिया के आदमी हैं, आप लोगों का ये मैदान नहीं है कि आप खुद तहकीक करें,
सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए, इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत होती रहेगी। बेशक। आप इतने बड़े दानिश्वर नहीं है, वक्त होता तो मैं आपको बताता कि आप कितने बड़े अक्लमंद हैं और कितनी समझबूझ रखते हैं और कितना आप दीन का शऊर रखते हैं। हमारे जिम्मा ये काम है कि हम अपने बड़ों के फैसले पर अमल करें और अपने ईमान की हिफाजत करें। वजू टूट जाता है, इस्तिंजा खाने में गए, पेशाब किया आपने, वजू टूट गया, आप धुल करके आ गए इस्तिंजा करके, आप ऐसे ही खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ने लगते हैं। वजू करने जाते हैं ना, वजू करने गए तो आपने क्या धुला? पहले क्या धुला? हाथ धुला, फिर चेहरा धुला, हाथ धुला पूरा, फिर उसके बाद इनमें आपने सर का मसा किया। वजू कैसे टूटा था? वजू कैसे टूटा था? पेशाब करने से ना, तो धुल के तो आ गए थे। चेहरे पे लग गया था क्या पेशाब की, उसको धुलने का हुक्म है। सर पे गिर गया था क्या पेशाब की, सर को मसा किया जा रहा है। वजू टूट रहा है पेशाब करने से, वजू टूट रहा है कहीं से, और मसा है और धोने का हुक्म कहीं दिया जा रहा है। क्यों ऐसा है? टूट रहा कहीं से। बड़े अक्लमंद बनते, लाइए उन लोगों को सामने, धोने का हुक्म उनसे पूछिए, कहीं दिया जा। जो लोग कहते हैं वो बड़ा दानिश्वर है, वो बड़ा अक्लमंद बनते, लाइए उन। क्या तमाशा है, जहां जाइए हजरत नौजवान इधर उधर हो रहे हैं। कोई हमारी कब्र में नहीं जाएगा, सुन लीजिए, ना हम किसी कब्र में जाएंगे, किसी की कब्र में नहीं। हर एक को अपने अमाल का हिसाब देना है, हर एक अपनी कब्र में जाएगा। मगर हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ खूबसूरत माहौल में बैठे हैं तो जन्नत में भी ऐसे ही माहौल में बैठे रहें। हम ये चाहते हैं कि यहाँ साथ है तो वहां भी साथ रहे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ रसूल पाक का गुन गा रहे हैं तो वहां भी मिल करके रसूल पाक का गुन गाएं। हम ये चाहते हैं कि आक़िबत सही रहे, आप बदअकीदों की गोद में मत जाएं। हमारा नफा नहीं, आपका अपना नफा है। वरना कुरान कह चुका, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। हिदायत और गुमराही क्लियर है, हिदायत और गुमराही वाज़ेह है, कुफ्र और ईमान के को क्लियर कर दिया गया है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे, जो चाहे कीजिए। हमारा क्या उसमें जा रहा है। मगर हम ये चाहते हैं कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह वाह। इस रिश्ते को बाकी रखिए और मजहब अहले सुन्नत, जिसे मसलक आला हजरत कहा जाता है, इसी पर कायम रहिए। नमाज पढ़िए, कसरत से दुरूद पढ़िए, बदअकीदों से दोस्ती मत कीजिए। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा, मार ही रखेगा। हलवा और गोबर को सामने रखिएगा, मिठाई का ही नुकसान होगा, जनाबे गोबर तो जहां थे वहीं रहेंगे। इसलिए आप लोग अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, आला हजरत की तालीमात पर अमल कीजिए, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहिए। मामूली मामूली बात पर झगड़ा बखेड़ा खड़ा करके इंतशार मत पैदा कीजिए। जो करने के काम है वो कीजिए। आपकी जो हैसियत है आप उसी के मुताबिक रहिए। तहकीक करना ये आपका काम नहीं है। आप तो डॉक्टर बन गए, आप तो इंजीनियर बन गए, आप तो प्रोफेसर बन गए, आप तो लॉयर बन गए, आप तो बिजनेसमैन बन गए, आप तो प्रॉपर्टी डीलर बन गए। आप जिस काम के लिए पढ़े आप वो काम कीजिए। दीन को समझाना उलमा का काम है, ये आपको समझाए, उस पर अमल कीजिए। और जो मोतबर उलमा है उनमें से बताइए आपकी नजर में कौन मोतबर है, कौन मोतबर है? ताजुश शरिया गैर मोतबर है, हुजूर मुहद्दिस कबीर गैर मोतबर है, सरकार मुफ्ती आजम गैर मोतबर है, मुहद्दिस आजम गैर मोतबर है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत गैर मोतबर हैं। ये वो शख्सियतें हैं कि आज के उलमा के इल्म को एक तरफ रखिए और आला हजरत के इन चहेतों के इल्म को एक तरफ रखिए तो उनमें से एक का इल्म आज के सारे उलमा के इल्म पर भारी नजर आएगा। उनकी शख्सियत इतनी बुलंद थी। ये हुजूर अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये हुजूर सदरुश शरिया, ये हुजूर मुबल्लिग इस्लाम, हुजूर बुरहान मिल्लत, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, आपके इसी गुजरात की सरजमीन पर हजरत सैयदना महमूद जान, ये वो उलमाए रब्बानीन हैं जिन्होंने आला हजरत की बारगाह से खूशा चीनी की और अपनी जगह पर खुद एक अंजुमन बन गए। बेशक। आप हमें नहीं मोतबर समझते हैं, इन उलमा का तो एतबार कीजिए।
اللہ کے رسول فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم، خیر و برکت اگر چاہتے ہو تو اکابر علماء کے دامن سے چپٹے رہو، ان کے دامن سے وابستہ رہو، انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام علیہ